Welcome, Fox. So now we are going to start off with chapter 10th, and that is more about Jainism and Buddhism. By this particular chapter, you will be able to understand better about these religions and their philosophy and ideology. So let's get started directly with today's topic, and I want your full attention to be there because these are the pointers I believe we will feel more because by nature we Indians are more into the philosophical part, more into religious parts and all. So it will make more fun or more understanding while we will be going through the chapter 10th. So let's get started off with the chapter 10th. So guys, this is about Jainism and Buddhism. So definitely we are going to discuss about two religions. So we will be having two videos for particular like for this chapter because it will not be like very much feasible for all of us to just complete whole things in one video. Firstly, we will understand about the causes, and then we will understand how these two religions gets into prominence and how people went into the zone where they just follow those religions. So then we will understand and start off with Jainism first, its doctrine, how it gets spread, and then we will move toward Buddhism, its doctrine and special features, and along with that at the end we will understand how like Buddhism get into, for example, in today's time if you watch surrounding yourself, then you will get to know like you can find and we all find the people who are from Jainism, but we don't usually find people who are Buddhist living in India. So how it all came into prominence, how things changed, we will also understand about this particular thing at the end of this particular session. So let's get started off directly with the causes of origin. So in the last video, we had understood about the later Vedic period and how things were turning out and how society was more becoming a fragmented one and varna system and all these were becoming very much prominent. तो उस सारी situation में it provide a very good ground to just start it off by the new religion. How? Let's understand one by one. So highly unequal society because of varna system. Let me zoom in further. बिकॉज ऑफ वर्ना सिस्टम और वेश्यस वर प्रिंसिपल टैक्स पेयर. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे सोसाइटी अनइक्वल होती जा रही थी और जो ये वेश्यस थे इनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि ये काम कर रहे थे, दे वर पे लाइक डूइंग हार्ड वर्क एंड ऑल एंड स्टिल दे वर द प्राइम टैक्स पेयर और बेनिफिट उन्हें कुछ खास नहीं मिलता था. सो दैट्स हाउ दे वर फीलिंग मोर डिप्राइव्ड, जो कि एक जब भी आप डेप्रिवेशन में होंगे, whenever you feel somewhere lost and you find somewhere who can handhold you, you will immediately shift gears toward that person. So that's how things work in like other scenarios also. So varna divided society has tensions, क्योंकि tensions होगा जब आप discrimination करोगे based on varnas and you will be not allowed to do particular things just because you belong to certain varna system or varnas. So that will make you like that will inculcate a sense of deprivation within you. So then Kshatriya's reaction against domination of priest class caused origin of new religion. एंड देन द क्षत्रियज वन, क्योंकि देखो क्षत्रियज के साथ भी वही था. अब यहाँ पे जब हम वैदिक अर्ली वैदिक के बाद हम लेटर वैदिक की बात करते हैं तो वहां पे जो ज्यादा प्रोमिनेंस में थे वो कौन थे? ब्राह्मण्स. तो अब ब्राह्मण्स के खिलाफ भी जो क्षत्रिय थे वही लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. इवन देन जो अथॉरिटी है वो ब्राह्मण्स की बन रही है, तो क्षत्रियज भी कहीं ना कहीं उस चीज में अपने आप को पीछे पा रहे थे. सो दैट्स हाउ क्षत्रियज ने भी उसके अगेंस्ट अपना रिएक्शन दिया. और वो रिएक्शन कैसे दिया? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बिकॉज यहाँ पे उन्हें एंडोर्समेंट्स भी मिली थी. अभी हम आगे इस पॉइंट को और अच्छा इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, पर अभी आप ये समझिए कि बिकॉज ऑफ वर्ना सिस्टम जो पूरी डेप्रिवेशन थी डिफरेंट वर्नास की, उसने ग्राउंड दिया जिसके बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट रिलीजन्स प्रोमिनेंस में आए. वर्धमान महावीरा फाउंडेड जैनिज्म, ठीक है, और गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था बुद्धिज्म. और दे बोथ बिलोंग्ड टू क्षत्रिय क्लैन. ओके, सो यहीं पे बात आ रही है कि क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, व्हेन यू एक्चुअली हैव लॉट ऑफ मनी ओनली देन यू कैन प्रीच दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग. जब आपके पास मनी नहीं होती है देन यू ऑलवेज नीड मनी, यू ऑलवेज नीड मनी फ्लो एंड ऑल. सो सेम यहीं पे है कि जब they were into the position where they were having like lot of influence, वो लोग किंग बन रहे थे, राइट? अगर हम गौतम बुद्ध की भी बात करें तो उस सिचुएशन में when they had all the things with them, then they understand कि इन सब चीजों में सुख नहीं है, सुख कहीं और है. So they went on and searched for the truth. तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये क्षत्रिय क्लैन से आते हैं महावीरा और ये बुद्धा, तो इन्होंने क्षत्रिय क्लैन में वो सारी एफ्लुएंस देखी थी, बट स्टिल दे वर फीलिंग हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड देन दे वेंट ऑन टू सर्च फॉर ट्रूथ.
and later on, because they, like, through the socialization and all, they also had went through the differentiation of varna system and all. When they understood about the truth, जब हमें सच्ची में truth समझ में आता है, then we understand कि सही में ट्रुथ की अगर हम बात करें तो ट्रुथ में तो कहीं भी इस चीज की जगह ही नहीं है कि आप आदमी हो या आप औरत हो, बिकॉज एट द एंड वी ऑल आर सोल्स एंड दैट आर ऑन द पाथवे ऑफ सर्चिंग ट्रुथ. So reality is that, but we always feel ourselves to be more logical and don't understand these things. जब हम छोटे थे तब हमें एक स्टोरी सुनाई जाती थी कि जब कोई किंग वापस आ रहा था, when the king had went on for some expedition, और रास्ते में उन्हें कुछ सूफी संत मिलते हैं, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के अपनी भक्ति कर रहे थे. सो ही वेंट ऑन और उन्हें कहता है कि आपकी कंडीशन सही नहीं है एंड ऑल, आई कैन हेल्प यू आउट, एंड मतलब आपको कुछ भी मदद की जरूरत है देन आई कैन हेल्प यू आउट. तो वो कहते हैं कि नहीं, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ टू फुलेस्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो उन्हें बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप अपनी लाइफ फुलेस्ट, आपके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, आप क्या कपड़े पहन के बैठे हो, यू डोंट हैव एनीथिंग विद यू, तो एक क्या फायदा क्या है आपकी जिंदगी का. तो वो सूफी संत हमेशा गंभीर होते हैं, तो उन्होंने उस तरीके से उन्हें उससे क्वेश्चन किया, अच्छा वो तो छोड़ो, आप ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो. तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसे लड़ाई करने जा रहा हूँ, साथ वाली टेरिटरी को जीतने जा रहा हूँ. कह रहे चलो ठीक है, अगर आप वो जीत जाते हो तो उसके बाद क्या करोगे. फिर मैं दूसरी टेरिटरी पे अटैक करूंगा, इस तरह करके फिर मैं फाइनली पूरे इंडिया में कैप्चर कर लूंगा. ओके ठीक है, और उसके बाद फिर मैं सुकून से बैठूंगा और सुकून से अपना बाकी का जीवन जीऊंगा. तो वो संत बोलते हैं जो तुम सुकून इतने साल की मुशक्कत करने के बाद ढूंढने की कोशिश में हो, वही सुकून हम यहीं बैठ के आज ही ढूंढ रहे हैं और आज ही उस सुकून को जी रहे हैं जिसके वो जीने के लिए तुम्हें इतने साल अपना टाइम और वेस्ट करना है. तो तुम बेटर हो या हम बेटर है. तो ये काफी आई ओपनिंग होता है उसके लिए भी. तो बेसिकली पॉइंट वही है कि एट द एंड सबको चाहिए सुकून, पर एनी हाउ वी आर इंडल्जिंग आवरसेल्फ इन वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड वी थिंक वी विल गेट हैप्पीनेस व्हेन वी रीच एट दैट पॉइंट. और जब वहां पे पहुंचते देन अगेन वी हैव सम अदर एम्बिशंस एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ वी वेस्ट आवर होल लाइफ. So that's more about it. The real cause of rise of these new religion was spread of new agriculture economy in northeast India, because agriculture economy जैसे enhance हो रही थी, then people were having more food grains, और वो लालच भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, तो और ज्यादा divisions का इफेक्ट हमें दिख रहा था. So this also contributed toward the influence or rise of these religions. To agriculture economy flourish, cattle sacrifice were to be stopped, क्योंकि हमने देखा लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइसेस का प्रोमिनेंस बहुत बढ़ गया था. तो एनी हाउ इफ यू वांट टू कंटिन्यू एग्रीकल्चर, तो वहां पे ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं चलते थे, राइट. तो उन्हें एनिमल्स के थ्रू ही अपना जो भी फील्ड था उसे प्लॉ करना पड़ता था एंड ऑल. तो सम हाउ दे वांटेड कि वो जो एनिमल सेक्रीफाइस है वो कहीं ना कहीं रुके, सो दैट दे कैन बेटर ऑफ विद द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो इसलिए, और ये जो थे, ये धर्म थे, ये नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे, तो उनके लिए और अच्छा एक ग्राउंड बन रहा था लोगों के लिए कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करे. Usage of coins started which facilitate trade and commerce. The earliest coins belong to 5th century BC पंचमार्क coin. अब क्या हुआ था, अब जब मेटल्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली डिफरेंट कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे. अब कॉइन्स इंट्रोड्यूस होने से ट्रेड इजी हो गया था, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम था, अब जैसे मैं आपसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो ऐसा तो नहीं होगा ना बार्टर सिस्टम में कि सपोज मैं आपको एक टमाटर दूं और आप मुझे एक सोने की वो बिस्किट दे दोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट. इतना तो अंडरस्टूड सबको है कि किस चीज की ज्यादा वैल्यू, किस चीज की कम वैल्यू है. तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता था उनकी नेगोशिएशन में. अब आगे थे कॉइन्स से ट्रेड भी और अच्छे से अपना काम कर सकता था, ट्रेड अच्छे से चल सकता था. तो ट्रेड चलना था, तो ये जो दोनों फिलॉसफीज थी, बुद्धिज्म की और जैनिज्म की, वो दोनों फिलॉसफी ट्रेड के लिए बहुत सही थी. और वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे. जैसे वो मनी लेंड करने, ये सब कुछ अलाउ कर रही थी, तो वो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रही थी. अब जो ट्रेडर्स थे उन्हें और ज्यादा अच्छा रीजन मिल रहा था कि यार ये वाला धर्म या ये वाली आइडियोलॉजी तो हमारे ट्रेड को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है, बिकॉज समवेयर वी ऑल डू नो कि सही क्या है गलत क्या है, बट वी वांट सब्सटेंस फॉर दैट कि चलो मुझे वो मेरा धर्म फिर भी ये बोलता है. ऑलवेज लाइक सब्सटीट्यूट विद सम आर्ग्यूमेंट कि हाँ नहीं मैंने ये इसलिए किया, अदरवाइज हमें सब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, बट हम एनी हाउ अपने आप को शायद कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते हैं. तो वही यहाँ पे भी चीज है कि अब वो उन्हें ये लग रहा था कि हमारा धर्म तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा, पर ये वाला धर्म हमें अलाउ कर रहा है, तो लेट्स गो विद दिस, क्योंकि हमें वो करना जो हम करना चाहते हैं. वी विल change our like association with religion, change our association with people, but करेंगे वही जो हम चाहते हैं. So these all give good ground on the basis of which these religions came into force और उनकी जरूरत महसूस होनी शुरू हुई. अब हमने causes of origins देख लिया, अब आता है इनके reasons क्या थे,
क्यों ये फ्लरिश हुए, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि होने का कारण ही क्या था, क्यों लोगों को उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। अब हम ये देखेंगे ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया, वो रिलीजन आ गया, तो वो इतना ज्यादा फ्लरिश हुआ ही क्यों? क्योंकि दे डिडंट अटैच इंपॉर्टेंस टू वर्ना सिस्टम, क्योंकि वर्ना सिस्टम उनकी प्रॉब्लम थी, लोग नहीं चाहते थे वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंगली उन्हें किसी चीज से डिप्राइव किया जा सके, तो वो चीजों को इन दोनों रिलीजन्स ने टैकल किया। देन दे प्रीच्ड नॉन वायलेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली वो ट्रेड और कॉमर्स को आगे प्रमोट कर रहे थे। वही जो कॉजेस में हमने देखा कि वो चीजों ने उन्हें आगे बढ़ने में, मतलब वो पर्टिकुलर लोगों को उस पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएट करने में पर एक अच्छा रीजंस दिया, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देन ब्राह्मिकल लॉ बुक्स कॉल्ड धर्म सूत्र, उन्होंने क्या, धर्म सूत्र के अकॉर्डिंगली आप मनी रेंट पे नहीं दे सकते थे, ब्याज पे नहीं दे सकते थे, बट वैश्यास तो वो कर रहे थे बिकॉज उनका वो बिजनेस था। तो एनी हाउ जो ये उनका, मतलब अगर हम उस पॉइंट से देखें तो उनका रिलीजन वैसे नॉर्मली उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था कि वो इस चीज के लिए जाए, बट अगर वो अपना रिलीजन ही चेंज करके इस रिलीजन में आ रहे थे तो उनको फायदा क्या हो रहा था कि अब उनके पास एक सब्स्टिट्यूट था उनके रिलीजन का कि भाई मेरा रिलीजन भी इस चीज को अलाउ करता है, तो ये भी एक रीजन बना। देन बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रेफर्ड सिंपल, अब देखो वो सिंपल लिविंग की बात करते थे कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग टाइप्स का चीज ना, कि मॉरल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ हाई होना चाहिए, एंड यू मस्ट परस्यू योर लाइफ वेरी सिंपली। तो वो भी एक जरूरत थी, क्योंकि अगर हम सिंपल लाइफ जीते हैं तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जरूरतें कम हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन की, जिसके बेसिस पे जैनिज्म और बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया और लोगों को और ज्यादा एसोसिएशन फील हुआ। अब जैनिज्म से कम और बुद्धिज्म से ज्यादा हुआ, वो कैसे हुआ हम अभी आगे देखते हैं। तो फर्स्टली दैट वर द रीजंस। अब इट्स क्लियर इन आवर हेड कि रीजंस क्या थे और कॉजेस क्या थे। नाउ लेट्स स्टार्टेड ऑफ विद जैनिज्म फर्स्ट। तो इफ वी टॉक अबाउट जैनिज्म, तो जैनिज्म में अकॉर्डिंग टू जैनास, जैनिज्म गोज बैक टू वेरी एंशियंट टाइम्स, और इसमें 24 तीर्थकार हुए। अब तीर्थकार का मतलब क्या है कि बेसिकली हम तो महावीरा की ही बात करते हैं, पर महावीरा से पहले भी 23 और तीर्थकार, जैसे हम गुरु बोल लीजिए तो वैसे 23 और गुरु हुए हैं, और ये 24th थे जो महावीरा थे, और ग्रेट टीचर्स और लीडर्स ऑफ देयर रिलीजन्स। फर्स्ट जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव, एंड हु वाज बोर्न इन अयोध्या। और उसके बाद जो लास्ट थे वो वर्धमान थे, हमें पता है वर्धमान महावीरा, और जो कि गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। अब देखो अभी तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इट्स गुड कि हम लोग ऐसे ही अपना जो डिस्कशन है उसे फॉलो अप कर रहे हैं, पर बाद में जब आप इसे रिवाइज करोगे ना, देन इट्स रिक्वायर्ड कि आप टाइम फ्रेम पे हर चीज करना, ताकि आप अच्छे से एसोसिएट कर सको कि कौन किसका कंटेम्परेरी था। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वर्धमान के, मतलब महावीरा के जो कंटेम्परेरी थे वो बुद्धा थे। मोस्ट ऑफ तीर्थंकर्स वर बोर्न इन मिडल गंगा बेसिन एंड अटेन निर्वाणा इन बिहार। जो 23rd तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ, हु वाज बोर्न इन वाराणसी। ये आपको 2-3 जो तीर्थंकर से इनका नाम जरूर याद रखना चाहिए, फर्स्ट, लास्ट और सेकेंड लास्ट। वर्धमान महावीरा was born in 540 BC in village called कुंदग्राम near वैशाली। कि जो वर्धमान थे उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था वैशाली में, और जो उनके फादर थे वो सिद्धार्थ थे, और ही वॉज डेफिनेटली क्षत्रिय क्लैन के वो एक हेड थे। और उसके बाद उनकी अगर मदर की बात करें, अब यहाँ पे हम मदर की इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जो इनकी मदर थी त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका, और उनकी मतलब जो रिलेशंस एस्टैब्लिश हो वो कैसे हो रहे हैं कि जो उनकी मदर के ब्रदर थे, मतलब जो उनके मामा थे, उनकी लड़की जो थी उनकी शादी हुई थी बिम्बिसार से, मतलब मौर्यन किंग से। तो इस तरह से इनका आपस में रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, बट डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं है। बट एनी हाउ उन्होंने अपने सारे रिलेशंस त्याग के ही हैड वेंट ऑन टू सर्च ट्रूथ। इन सर्च ऑफ ट्रूथ ही अबैंडन्ड वर्ल्ड एट एज ऑफ 30 एंड बिकम एसेंटिक। अब एक चीज याद रखना, बुद्धा और महावीरा दोनों की शादी हुई थी और दोनों के बच्चा भी था, एंड देन दे हैड वेंट ऑन टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इन 13th ईयर ही अटेन्ड कैवल्य। अब ये कैवल्य क्या है? जैसे हम लोग बुद्धिज्म में निर्वाणा एंड ऑल बोल देंगे, जैसे मोक्ष या एनलाइटनमेंट, तो वो प्राप्त हुआ था 13th ईयर में। थ्रू इट ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस। अब इनका कहना, अब ये जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, मतलब एक एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, तब उनका कहना यह है कि तब मैंने उसके थ्रू अपनी मिजरीज और हैप्पीनेस, क्योंकि देखो संत असल में क्या होता है, संत वो संत हो कहलाएगा जो खुशी में खुश ना हो, गमी में गम ना हो।
जिसकी जिंदगी में ये एक सिंपल क्राइटेरिया चलेगा, वही संत है। जिसे कुछ अच्छा हो रहा है तो खुशी नहीं है, कुछ बुरा हो रहा है तो दुख नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के रजा में राजी है। तो एक्चुअली वो संत होता है। तो वही यहाँ लिखा है कि जो केवल्य उन्हें मिला था, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इन चीजों को कॉन्कर कर लिया था। और वो तभी हो सकता है जब आप उन चीजों को कॉन्कर करो, ना तुम्हें दुख से दुखी हो, ना तुम सुख से सुखी हो, बिकॉज दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये सब एक नाटक हो रहा है। एंड वी ऑलवेज से बट वी आर नॉट एबल टू जस्ट absorb that thing कि ये सब नाटक हो रहा है. So but those people who are sages, they understand all those stuff very well. He passes away at age of 72 in 468 BC at Pavapuri near modern Rajgir. अब जो ये इन्हें निर्वाणा तो नहीं, केवल्य इन्हें प्राप्त हुआ था, वो हुआ था झारखंड में। ये आप जरूर याद रखिएगा। अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आगे का जो कोर्सेज होंगे, मतलब जो एडवांस कोर्स होगा, उसमें हम लोग इसे और अच्छे से टाइम फ्रेम में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में लिखा है कि इस तरह से निर्वाणा एंड ऑल, फिर हम इसकी और इन डेप्थ में जाएंगे कि क्या क्या फिलोसफीज थी एंड ऑल, तो वो और अच्छे से हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दीज वर द पॉइंटर्स दैट्स रिलेटेड टू जैनिज्म, कि ऐसा नहीं है जैनिज्म में सिर्फ महावीरा ही जो है वो गुरु हुए हैं, उनके तीर्थकार हुए हैं। उनके ऑलरेडी 23 और तीर्थकार थे, और 24 जो तीर्थकार थे वो थे महावीरा। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills हैं, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you, आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So now let's understand about the doctrine, कि जैनिज्म की डॉक्ट्रिन क्या है। जो जैनिज्म की डॉक्ट्रिन है उसमें 5 डॉक्ट्रिन्स मानी जाती है। 5 डॉक्ट्रिन्स क्या है कि डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, और ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। अब देखो ये याद रखना कि ये जो लास्ट है ना, ये ब्रह्मचर्य को अपनाना, दिस वाज ओनली एडेड बाय महावीरा। जो बाकी 4 है दे वर कंटिन्यूड सिंस लाइक अर्लियर तीर्थकार्स। तो ये 5th वाला जो था सिर्फ यही महावीरा ने ऐड किया था एक्स्ट्रा। सो दीज वर द 5 डॉक्ट्रिन अकॉर्डिंग टू विच दे वांटेड देयर डिसाइपल्स टू मूव फॉरवर्ड। कि वायलेंस तो करना ही नहीं है, वो तो क्लियर है, झूठ नहीं बोलना, जो सारे सब धर्म यही बोलते हैं, चोरी नहीं करना सब धर्म बोलते हैं, और इसमें एक और चीज क्या है, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, बिकॉज एनी हाउ वैसे भी अगर हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो टेंशन ही अपनी जिंदगी में लेते हैं, बट हाँ ये चीज भी यहाँ थी कि डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी। एंड 5th वॉज कि ब्रह्मचर्य को अपनाओ। सो दीज वर द 5 doctrines of Jainism. Now only 5th was added by Mahavira. Other 4 were taken from previous तीर्थकार्स। और इसमें फिर आगे जाके जब ये और ज्यादा आगे बात बढ़ती है, अब देखो मैं आपको वो थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ क्या होता है। ठीक है, ये तीर्थकार्स थे, और उसके बाद जो महावीरा थे उनके गंधार्स क्या थे कि फर्दर 11 उनके प्राइवेट, जैसे काउंसिल टाइप होता है तो वैसे उनके प्राइवेट लोग थे, मतलब उनके क्लोज डिसाइपल्स थे। उन लोगों उनका पर्पस क्या था, जो 11 उनके पर्सनल डिसाइपल्स थे, कि महावीरा के बाद वो उनकी जो फिलॉसफी है, टीचिंग्स है, उन्हें आगे प्रमोट करेंगे। अब होता क्या है, जब महावीरा की डेथ होती है तब ऑलरेडी वो 11 में से 10 की डेथ हो चुकी होती है, सिर्फ 11th मतलब एक ही बचे होते हैं। तो अब क्या होता है, चलो ठीक है, उसके बाद वो उन चीजों को कंटिन्यू करते हैं, पर फिर एक फेमाइन आता है, काफी लंबा फेमाइन आता है गंगा बेसिन की तरफ। तो उस फेमाइन में क्या होता है, कुछ जो डिसाइपल्स थे वो और चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो जैनिज्म है उसे अडॉप्ट करते हैं, उसकी एक अलग स्टोरी है। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करेंगे मैं तब आपको बताऊंगी कि वो क्यों करते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझिए फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ डिसाइपल्स फिर वो चले जाते हैं साउथ की तरफ, ताकि ये फेमाइनेंस से बचा जा सके। पर कुछ डिसाइपल्स वहीं पे ही रहते हैं अपनी जगह पे, गंगा बेसिन की तरफ। जो वहां पे रहते हैं वो कहते हैं सुलाबाऊ वाले, मतलब वो हेड किए जाते हैं सुलाबाऊ के थ्रू। और जो उधर चले गए थे साउथ में, मतलब जो साउथ की तरफ को जाते हैं वो हेड किए जाते हैं
भद्रबाहु के थ्रू, भद्रबाहु उनके जो हेड होते हैं। जब ये 12 इयर्स के बाद जब ये जो गंगा रिवर बेसिन था इसमें ये जो फेमाइन होता है ये खत्म होता है, देन दे वेंट ऑन टू कम बैक, मतलब जो भद्रबाहु है वो वापस आते हैं। बट जब वो वापस आते हैं तो जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे थे स्थूलाभाऊ के जो डिसाइपल्स, स्थूलाभाऊ और बाकी जो डिसाइपल्स रह रहे थे, तो वो बहुत शॉक्ड होते हैं बिकॉज दे वर नेकेड, जो भद्रबाहु आए थे। तो वो कहते हैं कि ये क्या है कि आपने ये मतलब आपने कपड़े भी नहीं पहने एंड ऑल। तो दे सेड कि यही असली जैनिज्म है। और जो यहाँ वाले थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मतलब ये जैनिज्म नहीं है, जैनिज्म वो है जो हम फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज जैनिज्म की जो फिलोसफी है उसमें ये बोला जाता है कि तुम किसी को हर्ट मत करो। तो वो हर्ट नहीं करने का, आपको पता है जैनिज्म में खाने की ऊपर भी ये जो कुछ पाबंदियां है कि मतलब यू शुड टेक फूड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट अ पर्टिकुलर वेजिटेबल टू हैव, जिसमें जितनी सेंस है उसके हिसाब से ही खाते हैं। कि जैसे पोटैटोज वगैरह वो लोग नहीं खाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन इट्स प्रोहिबिटेड। बाकी वो खा ले वो अलग चीज है, बट अकॉर्डिंग टू रिलीजन इट्स प्रोहिबिटेड। और ये तो फिर उन दोनों में फिर वहां से डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। और वो डिफरेंसेस फिर फर्दर जब आगे बढ़ते हैं तब ये होता है, उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब उनकी फिर फर्दर वो डिफरेंसेस के बेसिस पे काउंसिल सेटअप होती है और फिर वो डिवाइड होते हैं श्वेतांबर और दिगंबर्स में, जो आज भी हमें पता है कि एग्जिस्ट करता है जैनिज्म में। जो श्वेतांबर है वो है जो व्हाइट ड्रेसेस पहनते हैं, जो मॉन्क्स व्हाइट ड्रेस पहन के वो मतलब चलते हैं, तो भिक्षा वगैरह मांगते हैं। तो वो जो श्वेतांबर्स हैं, और दिगंबर्स वो हैं कि जो नेकेड रहते हैं। सो दिस इज हाउ जैनिज्म में डिफरेंट टू फॉर्म के अंदर सब डिविजन हुआ था। अब हमने समझा वो क्यों हुआ था, व्हेन दे वेंट ऑन टू सेंटर। और देखो यही कारण है कि मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा हाईली कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का और भद्रबाहु का, कि जो लोग जो ये फेमाइन के दौरान ये साउथ में गए और इसकी वजह से कर्नाटका में जैनिज्म बहुत अच्छे से प्रमोट हुआ था बिकॉज ऑफ दैम। एंड एनी हाउ चंद्रगुप्त मौर्य जब वहीं पे थे तब उनकी डेथ हो जाती है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड ओवर देयर। सो श्वेतांबर और दिगंबर्स इस तरह से आगे डिवीजन हुआ था। सो जैनिज्म अब ये इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जैनिज्म डू नॉट कंडेम वर्ना सिस्टम एज बुद्धिस्ट डिड। जो बुद्धिस्ट थे वो वर्ना सिस्टम को टोटली अबेंडन करते थे, वो उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वर्ना सिस्टम नहीं होना चाहिए। जबकि जैनिज्म में इन्होंने सोल की अपलिफ्टमेंट की बात की है, सब कुछ है, मगर दे हैड नॉट वर्कड ऑन और दे हैड नॉट टॉक्ड लॉट ऑन वर्ना सिस्टम। सो लिबरलिज्म कैन बी ऑब्टेन थ्रू राइट नॉलेज। अच्छा, उसके बाद इसमें त्रिरत्न बोला जाता है जैनिज्म में। और वो त्रिरत्न क्या है कि हमें अगर लिबरलिज्म चाहिए, अगर हम लिबरल होना चाहते हैं, अगर हम आजाद होना चाहते हैं, एक एनलाइटनमेंट चाहते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। ये तीनों चीजें होंगी इंटैक्ट तभी हम आगे। और ये काफी आई बिलीव ठीक है, रिलीजियस फिलोसफी है, अगर हम नॉर्मली एक अपनी लाइफ से उसे जोड़ के भी समझे तब भी हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। 3 ज्वेल्स जो है या त्रिरत्न, और त्रिरत्न क्या है, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। सो दैट वाज द बेसिक फिलोसफी और डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जिसमें हमने देख लिया कि 5 डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो क्या क्या हैं, और फिर हमने त्रिरत्न भी देखा, और जो जैनिज्म में फर्दर डिवीजन है श्वेतांबर और दिगंबर्स में, वो भी हमने समझने की कोशिश की। Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder: if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. Now comes spread, कि how it got spreaded. So basically Jainism में admitted both men and women, but as not opposed वर्ना सिस्टम, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वजह से वर्ना सिस्टम को देखो, उनकी दुखती रबस क्या थी, एक तो ट्रेड तो था पर दूसरा वर्ना सिस्टम भी था। तो ट्रेड को तो इन्होंने टेकल किया कि हाँ ट्रेड की प्रमोशन की बात हो रही है, मगर दे हैड नॉट टेकल्ड ऑन द पॉइंट ऑफ वर्ना सिस्टम। सो इस पॉइंट पे लोग ज्यादा इंक्लाइंड नहीं हुए जैनिज्म की तरफ आने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम जैन, gave up his throne and spent last year of his life in Karnataka as Jain ascetic. अब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्चुअली क्यों जैनिज्म अडॉप्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य wanted to just
conquer the territory, जिसके बीच में बहुत सारा bloodshed हुआ, सब कुछ हुआ. Then what happened, भद्रबाहु आते हैं उनके पास, जैन जो मुखी थे, अभी हमने डिस्कस किया था राइट, श्वेतांबर और दिगंबर के डिस्कशन में. तो भद्रबाहु आते हैं, तो वो उनको ही प्रिडिक्शन करते हैं कि यहाँ पे बहुत बुरा फेमाइन होने वाला है गंगा रिवर में, ये तुम्हारे एरिया में. और क्यों होने वाला है, क्योंकि जो तुमने इतने सारा ये ब्लडशेड किया है, इसमें इतनी लोगों की जाने गई है, सब कुछ गई है, तो उसका एक तरह से पाप टाइप का बोल लीजिए, तो उसकी आपकी वजह से अब आपकी जो लोग हैं वो सर्वाइव करेंगे. तो चंद्रगुप्त मौर्य तब वो जैनिज्म अडॉप्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पेनिस करूंगा और somehow I don't want my people to survive, और मैं उस अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा. So that's how जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन बन के एसेटिक की रोल प्ले करते हैं, या एसेटिक की फॉर्म में लाइफ जीते हैं. So that's how चंद्रगुप्त मौर्य became monk. सो सदरन जो थे वो दिगंबर्स थे और मगधन श्वेतांबर वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अभी. अर्ली जैन्स डिस्कार्डेड संस्कृत, क्योंकि उन्हें लोकल पीपल की लैंग्वेज यूज करनी थी, और जो संस्कृत थी वो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी बेसिकली राइट, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत के थ्रू अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते थे, और ये लोग जो न्यू रिलीजन्स आ रहे थे ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में एक तरह से थे राइट. जो उनकी प्रॉब्लम्स है उस चीज को टैकल, जो भी ऑलरेडी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें टैकल करने के लिए न्यू रिलीजन बनता है. तो डेफिनेटली वो संस्कृत नहीं यूज करते. उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की, जो लोकल लोगों की लैंग्वेज थी, दैट वाज प्राकृत. देयर रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन अर्ध मगधी, और जैन लिटरेचर कंटेन्स एपिक्स, पुराण्स, नॉवेल्स, ड्रामा. जब हम जैना उसकी टेक्स्ट की बात करते हैं तो उनके जो हमें, जब भी हम हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं तो हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस को देखते हैं टू जस्ट फॉलो अप एंड टू अंडरस्टैंड बाय द प्रूफ कि जो हम सोच रहे हैं डाउन द लाइन वो सही है या नहीं है. तो जैनिज्म लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत कुछ आता है, पुराण आते हैं, नॉवेल्स, ड्रामास, ये सब कुछ इंक्लूड होता है. और इनिशियली लाइक बुद्धिस्ट, जैनिस वर नॉट इमेज वर्शिपर, बट लेटर ऑन दे वेंट ऑन टू बिकम द सेम, और वो श्वेतांबर के थ्रू स्टार्ट हुआ. सो दैट्स हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट एंड दैट्स हाउ जैनिज्म स्प्रेड. ठीक है, तो ये था अबाउट जैनिज्म. So I hope you better understand right now about Jainism, and I request you, if you are watching this video for the first time, just re-watch the video because I had tried to explain lot of things जो कि अगर आपको फर्स्ट टर्म में समझ में नहीं आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप उसको रिविजिट कीजिए ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ सकें. एक चीज याद रखिएगा, इस पूरी जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको अगर अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ना है तभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और तभी आप एक अवेयर सिटीजन भी बनोगे अलॉन्ग विद बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, जो कि होना चाहिए. सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट बुद्धिज्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और जो आपके मेन पॉइंटर्स हैं, समरी है ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आई विल लव टू सी योर समरी in the comment box and I will revert back to it also. So thank you so much guys for this video. I will see you all in the next video. Till then, bye bye.